Hello students, welcome in my YouTube channel Study Zone Passion for Learning. In this lecture, we will discuss the second chapter of statistics. As first chapter is theoretical chapter, and in that we have discussed the meaning of statistics in both singular as well as plural sense. So let's recall the 5 steps or stages of statistics in a singular sense, that is collection, organization, presentation, analysis and interpretation of data. And on that basis, the whole 11th class syllabus is covered. That we will discuss one by one in every chapter of the statistics book. So in this chapter, we will discuss the first stage of statistics in a singular sense, that is collection of data. तो कुछ भी और कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए और रिजल्ट्स में पहुंचने के लिए our first and foremost task is to collect the data. And from where we have to collect the data, how to collect, who will collect, by which method using we collect the data, all these we will study in this chapter. So first we will discuss the definition of statistics. What statistics means? Statistics means data or quantitative information capable of some meaningful conclusion. That means मतलब क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, डेटा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, जो मीनिंगफुल कंक्लूजन या फिर रिजल्ट ड्रॉन कर सके, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. सो टू ड्रॉ अ कंक्लूजन or to interpret the result is possible only when we will collect the data. Otherwise it will not be possible. जब तक आप डेटा कलेक्ट ही नहीं करोगे तो आप कंक्लूजन या फिर रिजल्ट इंटरप्रेट कैसे कर पाओगे? सो द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम वेयर ऑल द स्टेजेस बिगिन इज कलेक्शन ऑफ डेटा. इन कलेक्शन ऑफ डेटा we will study first sources of data as well as second we will study method of collecting data. So data कहाँ से collect करना है, कैसे collect करना है, और ये बहुत ही important concept है इस chapter का. So in this lecture we will study only the source of data. What we will study? Only the source of data we are going to discuss in this chapter. Okay, and later on in the next lecture we will discuss the methods of collecting data. Okay, let me talk about the sources of collection of data. Basically there are two sources of collection of data. First is primary source and second is secondary source. First we talk about the primary source of data collection. What do you mean by primary source? Primary source of data implies collection of data from its source of origin. That means ये ओरिजिन से इसका ओरिजिन ही जहाँ से डेटा कलेक्ट करना शुरू होते हैं वहाँ से होता है. इसका मतलब जहाँ से डेटा बना है वहीं से डेटा स्टार्ट हो रहा है. तो हम डेटा को कलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं? जहाँ से डेटा बना है, जहाँ से उस डेटा का ओरिजिन हुआ है. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी आर मेकिंग द डेटा. वी आर मेकिंग द डेटा. इट ऑफर्स फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन. ये फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन हमें देता है, फर्स्ट हैंड डेटा देता है रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी. पहली बार ही डेटा बन रहा है, मतलब जिस चीज़ की मुझे स्टडी करनी है डेटा फर्स्ट टाइम ही क्रिएट हो रहा है. सो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सोर्स, क्योंकि पहली बार जहाँ से डेटा कलेक्ट हो रहा है उसका सोर्स क्या है? प्राइमरी है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई वांट टू नो हाउ मेनी फैमिलीज़ आर लिविंग इन माय सोसाइटी. ऑल्सो आई वांट टू कलेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ फैमिली मेम्बर्स. तो मैं अपने सोसाइटी के हर एक घर से जाकर पता करूँगी कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ पर और डेटा कलेक्ट करूँगी. तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं प्राइमरी, इसे हम क्या कहेंगे? इसे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन कहेंगे.
क्यों? वाई इट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा? क्योंकि जहाँ से वो डेटा बना है, मतलब मैं पहली बार जहाँ जाकर उनसे पूछ रही हूँ, वहीं से डेटा ओरिजिन हुआ है, तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है. एंड दिस इज़ द फर्स्ट हैंड source also. So that is why it is called as primary source of data collection. Now we talk about the second source of data collection, that is secondary source. Okay, so let's understand this also with the help of same example. As now I have a record of family members in each family living in my society, and I make a soft copy of this. Now one authorized person want the same record. I gave him also. तो उन्होंने क्या किया, मेरे बनाए हुए सॉफ्ट कॉपी को में से ही डेटा कलेक्ट किया. पर्सन जाकर डेटा कलेक्ट किया क्या? नहीं किया. ओके, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, क्योंकि इन्होंने जहाँ से डेटा बना है वहाँ से नहीं लिया, पर जहाँ पर ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है वहाँ से कलेक्ट किया है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ data collection. So what is the definition here? Definition is secondary source of data collection implies obtaining the relevant statistical information from an agency or an institution which is already in possession of that information. Okay, so what do you mean by secondary source of data collection? इसका मतलब ये हुआ कि यानी एक एजेंसी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जिसके पास वो डेटा ऑलरेडी रखा हुआ है, मैंने वहाँ से डेटा कलेक्ट कर लिया है. सो दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन. तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? प्राइमरी सोर्स मीन्स जहाँ का डेटा है वहीं से कलेक्ट करना, वेयर एज सेकेंडरी सोर्स मीन्स जहाँ डेटा पड़ा है, कोई इंस्टीट्यूशन या एजेंसी के पास रखा है, वहाँ से डेटा लेना, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन कहेंगे. सो स्टूडेंट्स, एज वी हैव टू सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, देन द टाइप्स ऑफ डेटा विल ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स. फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा. सो in simple sense, we say that data which we collect from primary source is called primary data, and the data which is collected from secondary source is called as secondary data. Now we discuss the definition of primary data. Data collected by the investigator for his own purpose for the first time from beginning to end are called primary data. That means the data which is collected by investigator for his or her own purpose or organization purpose, and for the first time he collects the data, before that no one collects this data. That means अगर पहले किसी ने डेटा कलेक्ट किया भी होगा तो वो अपने पर्पस के लिए किया होगा, और यहाँ पर वो अपने या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहली बार डेटा कलेक्ट कर रहा है, शुरू से लेकर आखिरी तक, तो उस डेटा को हम प्राइमरी डेटा कहेंगे. So, in simple words, the data which you will collect from the first time for your own purpose, then it will called as a primary data. So, it is also one definition given here in the words of Wessel: data originally collected in the process of investigation are known as primary data. So primary data are most probably original data, ये original होते हैं. Okay, now we talk about the secondary data. Secondary data क्या होते हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया द डेटा विच वी कलेक्ट फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. तो जो डेटा पहले किसी ने कलेक्ट कर लिया था, उसने वो कलेक्टेड डेटा कहीं रखा हुआ होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास, रजिस्टर में या लैपटॉप में उसके रिकॉर्ड होंगे. उस डेटा को मैं ले रही हूँ तो उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डेटा कहेंगे. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा? इन द वर्ड्स ऑफ M.M. Blair, secondary data are those which are already in existence and which have been collected for some other purpose than the answering of the question in hand.
ये डेटा पहले से ही कहीं रखा हुआ है और वो किसी और वजह से कलेक्ट किया गया होगा, देन द आंसरिंग, यहाँ पर जो वर्ड है देन द आंसरिंग ऑफ दिस क्वेश्चन मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि जिस क्वेश्चन का मैं आंसर ढूंढ रही हूँ उसके लिए नहीं, पर किसी और वजह से वो डेटा ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके रखा है और उस डेटा को जब मैं यूज़ करूँगी अपने पर्पस के लिए तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा कहलाएगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी डेटा. Okay, so these data are therefore also called as second hand data, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं कलेक्ट किया है, हमने किसी के रिकॉर्ड को कॉपी किया है अपने पर्पस के लिए, then it is called as second hand data. Obviously, since these data have already been collected by somebody else, as I told you कि ये किसी ने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया होगा, so these are available in the form of published और unpublished report. हो सकता है ये कहीं published हो ये रिकॉर्ड और कहीं ये अनपब्लिश्ड हो. सो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, डेटा रिलेटिंग टू इंडियन रेलवेज विच आर एनुअली पब्लिश्ड बाय द रेलवे बोर्ड वुड बी सेकेंडरी डेटा फॉर एनी रिसर्चर, क्योंकि उस रिसर्चर के लिए वो क्या है, सेकेंडरी डेटा है. ओके, तो सेम डेटा, चाहे वो सेम डेटा कोई भी हम बात करें, वो प्राइमरी भी हो सकता है, वो सेकेंडरी भी हो सकता है ना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई से डैट हियर कि द डेटा विल बी सेम, डेटा सेम है बट इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ये प्राइमरी डेटा भी हो सकता है सेम डेटा और सेकेंडरी डेटा भी हो सकता है. कैसे होगा? Suppose let's take an example. I am a student of class 11 and I want to collect the height and weight record of my classmates for my purpose only. So then this data is the primary data. ठीक है, but same record I gave this record to my class teacher for his or her purpose, so it will be secondary data, क्योंकि पहली बार उस डेटा को, उस हाइट वेट के रिकॉर्ड को किसने कलेक्ट किया, मैंने कलेक्ट किया, तो मेरे लिए वो प्राइमरी डेटा हुआ. बट वही रिकॉर्ड को मेरी क्लास टीचर अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रही है, उन लोगों से पर्सनली पूछ के नहीं, बट उसी को कॉपी डाउन करके मेरे रिकॉर्ड को, देन इट विल बी द सेकेंडरी डेटा. सो फॉर मी इट इज़ अ प्राइमरी डेटा एंड फॉर माई क्लास टीचर it will be a secondary data or a second hand data because first time that data is recorded by me. So हम ये कह सकते हैं कि एक डेटा वो सेम डेटा है बट दोनों ही अलग अलग हो सकते हैं. प्राइमरी डेटा भी हो सकता है वो सेम डेटा और सेकेंडरी भी हो सकता है, दोनों का पर्पस डिफरेंट होगा. Okay, now we talk about the last topic of the lecture, that is principal difference between the primary and secondary data. So there are some principal differences between both the data. First is difference in originality. Primary data is more reliable and more accurate in comparison to secondary data, क्योंकि प्राइमरी डेटा इंडिविजुअल के पास जाकर कलेक्ट किया जाता है, जबकि सेकेंडरी डेटा प्राइमरी डेटा से कॉपी डाउन होता है. अगर सपोज़ प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने वाले ने कोई मॉडिफिकेशन किया हो अपने रिकॉर्ड में अपने रिजल्ट्स को अप्रोप्रिएट करने के लिए और आपने भी उसी को कॉपी कर लिया एज अ सेकेंडरी डेटा, देन उसमें जो गलतियाँ होगी वो इनअप्रोप्रिएट होगी एंड दैट विल बी अ सेकेंडरी डेटा और वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ओरिजिनल नहीं होगा. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी डेटास हमेशा कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टिगेटर के कुछ ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करता है, कोई पर्टिकुलर पर्पस को फुलफ़िल करता है. सो दीज डेटा देयरफॉर डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट फॉर द कंसर्न स्टडी. कोई कंसर्न स्टडी के लिए उनको कोई एडजस्टमेंट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है किसी और पर्पस के लिए. प्राइमरी डेटा जिसने कलेक्ट किया है उसने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया है, देयरफॉर दीज डेटा नीड टू बी एडजस्टेड. उसको एडजस्ट करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग टू सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी इन हैंड, अपनी ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए. सो दोनों के ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस होता है. थर्ड डिफरेंस इज़ डिफरेंट इज़ कॉस्ट ऑफ कलेक्शन. सिंपल सी बात है, प्राइमरी डेटा ज़्यादा कॉस्टलियर होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम,
money and efforts, whereas secondary data is less expensive. क्योंकि जब पहली बार आप डेटा कलेक्ट करोगे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, मनी भी ज़्यादा लग सकती है, एफर्ट्स भी ज़्यादा लग सकते हैं. पर सेकेंडरी डेटा उसी की कॉपी होती है तो उसमें थोड़ा कम टाइम लगता है और वो थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होगा. सो सेकेंडरी डेटा आर सिंपली कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स. अकॉर्डिंगली दीज आर much less expensive. So students, these are the three principal difference between the primary and secondary data. But it may be noted that there are no fundamental difference between primary data and secondary data. Why? Because data are data, whether चाहे वो primary हो चाहे वो secondary हो. These are classified only on the basis of their collection. और वो कलेक्शन के बेसिस पे डेटा कितने तरीके के हमने पढ़े, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. Thus, a particular set of data when collected by investigator for a specific purpose from the source of origin would be a primary data, and the same data when used by some other investigator for his or her own purpose would be known as secondary data. तो दोनों सेम डेटा, मैंने अभी यही बात करी कि एक डेटा प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है, बट दोनों के पर्पस डिफरेंट होंगे. और यही हमारा आज का लेक्चर है. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे ट्यून and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.